ایک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، ہیرو ٹی وی پر میں ہوں وینا ملک۔ توبہ اور استغفار کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کی کالز، ای میلز، میسیجز سب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سلسلے کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔ میں خود بھی بہت زیادہ خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس رمضان میں توبہ کی برکتیں سمیٹی۔ ایک توبہ دوستو، ایک توبہ ہماری اور آپ کی زندگی بدل سکتی، عمر بھر کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کروائے جا سکتے۔ تو پھر کیوں ہم توبہ کی طرف نہیں آتے؟ کیوں ہم رب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے؟ کیوں ہم رو رو کر اپنے ناراض رب کو راضی نہیں کرتے؟ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہیرو ٹی وی نے اس سلسلے کے ذریعے ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ آئیے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی اپنے خدا سے معافی مانگ لیں۔ دوستو، رمضان میں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے دوستو کہ جب معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو وہ اس پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ ہے بدکاری کا گناہ۔ ہمیں اپنے ارد گرد ہر دوسرا شخص اس گناہ میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس گناہ کی بربادی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو، یہ مہینہ ہے ہی اس لیے کہ ہم گناہوں کا احساس کریں اور اپنے رب سے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا صاف دل سے وعدہ کریں۔ آئیں مل کر اس کبیرہ گناہ پر اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اور دوستو، آپ میں سے کوئی بھی شخص جو اس گناہ میں مبتلا رہا ہے اور آج اپنے خدا سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں، 021-358-0077۔ کال کیجئے اور اپنے خدا سے اپنے اس گناہ پر معافی مانگیے۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد ضیاء الحق صاحب موجود ہیں جو کہ ہمیشہ کی طرح آپ کی اور ہماری رہنمائی کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ ہی کی طرف میں آ رہی ہوں کہ بدکاری کا جو گناہ ہے ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دوسرے معاشروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدکاری کو روکنے کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہماری نماز سے دوری، نماز انسان پڑھتا ہے تو وہ پاکیزہ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک آدمی کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کچھ میل کچیل باقی رہتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا اسی طرح جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر بھی کوئی میل اور کچیل، اس کے دل پر، اس کے جسم پر، سب کو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو نماز اب جب ہم پڑھیں گے
बेहयाई से, बदकारी से हम रुकेंगे। मौलाना साहब, बदकारी के जुमरे में कौन कौन से अमाल जो हैं वो आते हैं? बदकारी में सबसे बड़ा जो गुनाह है वो बदकारी लफ्ज जो कहा जाता है वो ज़िना के ऊपर आता है। बदकारी से मुराद है बुरा काम। बुरा काम। लेकिन इसमें बदकारी से जो हमारे यहाँ आम वो फलाना बदकार आदमी है, वो बदकार औरत है, तो वो ज़िना के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये बदकारी सबसे बड़ी जो है वो इसमें आती है। जी माफ कीजिएगा मौलाना साहब, इस वक्त एक हम फोन कॉल रिसीव हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे बात करनी है। कौन बात कर रहे हैं? देखिए, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, मैं एक बात हूँ। जी, और नाम नहीं बताना चाहते, कोई वजह होगी, फरमाइए। एक वजह है उसकी। बहन, मेरी आजकल का माशरा इतना खराब है कि मेरी जवान बेटियों को मैं कॉलेज नहीं भेजता, सिर्फ इस डर से कि मेरी और हमारी इज्जत पर अल्लाह न करे कोई ना चाहे। बहुत अच्छा नुक्ता उठाया आपने मौलाना साहब। एक शख्स ने फोन किया है मगर वो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे, और इस तरह के मसाइल बहुत सारे इस वक्त वालिदैन का है। उनका कहना है कि मुआशरे में गलत काम इस कदर ज्यादा हो गए कि वो इस डर से अपनी बच्चियों को कॉलेज तक नहीं भेज पा रहे। मौलाना साहब, कितने वालिदैन हैं जो इस मुआशरे की खराबी की वजह से अपनी बच्चियों तक पढ़ा नहीं पाते हैं। बहुत सारे रोजमर्रा के काम हैं जो वो कर नहीं पाते। उसकी वजह हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो ये बदकारी और फहाशी का जो उनसर हमारे अंदर ज्यादा नुमाया है वो हमारा मीडिया है, जो गलत चीजें पेश करके घर के अंदर देखा जाता है। उसमें नेट भी आता है, गलत चीजें भी आती हैं, वहां से प्रमाण चढ़ते हैं। मगर मौलाना साहब, गलत रास्ते पर चलना तो इसका मतलब है कि खुद के बस में। आप चाहे टीवी देखें, आप चाहे इंटरनेट पे जाएं, चाहे इंटरनेट पे ना जाएं, इसका मतलब है कि सबसे पहले अपनी जात को पाक साफ करना बहुत जरूरी है। हर शख्स अगर इसके ऊपर जोर दे तो मेरा ख्याल है मुआशरा बेहतर हो सकता है। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब वहां पे चीजें देखेंगे तो बाहर आके वो करेंगे। बिल्कुल। अगर लड़के करते हैं या लड़कियां करती हैं, तो इसलिए हमें जो है वो ऐसी चीजों से दूर होना चाहिए। हमें अल्लाह का डर और खौफ जो सबसे बड़ी चीज है, इस्तिग़फ़ार की तरफ ये माह रमजान के अंदर अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द। फरमाया कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की तरफ आओ, बख्शिश की तरफ आओ, और अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी जन्नत देगा जो सातों जमीनों और सातों आसमान को जोड़ दो तो उससे भी इसका मतलब है कि बदकारी से बचने का एक ही तरीका है कि अपनी इस्लाह की जाए, अपनी बख्शिश की तरफ अपनी इस्लाह की जाए और नमाज की तरफ जाया जाए, क्योंकि नमाज ही तमाम, नमाज ना पढ़ना ही जो है नमाज बेहयाई से रोकती है जड़ है, और नमाज बेहयाई से रोकती है। यकीनन बेहयाई से ही आगाज होता है बदकारी का। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, इस वक्त कॉलर मौजूद है। जी फरमाइए, कौन है? मैं उमर रईस खान बात कर रहा हूँ। जी खान साहब, फरमाइए। ये मेरा अपने एक जाती राय था इसमें कि जो हमारे मुल्क में जो है ना, कहीं पर हम टीवी पर बगैरती दिखाते हैं, कहीं पर गैरत के नाम पर जो है ना माँ-बहन बेटियों को कत्ल कर दिए जाते हैं। हमारे मस्जिद में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह मौलाना साहब, मैं जाती तौर पे ये बात नहीं, ये सब जगह यही हाल है। आप लोग को भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक है मौलाना साहब। ये जो दो एक्सट्रीम के ऊपर हमारा मुआशरा चल रहा है, एक तरफ जरा सी बात के ऊपर कि किसी लड़की ने गैर महरम से बात क्यों की, शादी ब्याह पे गाने क्यों गाए, इस बात पे कत्ल तक हो जाते हैं, गैरत के नाम के ऊपर अपनी लड़कियों की गर्दनें तक उतार जाती हैं। और दूसरी तरफ इस कदर एक्सट्रीम दिखाई जा रही है कि सब कुछ हो रहा है इस मुआशरे में। मौलाना साहब, ये क्या, किस चीज का चेहरा है? इस्लाम का चेहरा तो नहीं है। इस्लाम से बेराह रवी है। और दूसरा यह है कि इलाकाई हमने कुछ अपने कानून बना लिए हैं। अगर हम इस्लाम को फॉलो करें तो ये नहीं है कि पाकिस्तान के सिंध का कुछ और कानून हो, पंजाब का कुछ और कानून हो, किसी और जगह का और कानून हो। जब हम इस्लाम को फॉलो करेंगे तो इस्लाम का कानून जब अपनाएंगे तो उसमें कोई भी ऐसा इस्लामी सजाएं ही दी जा सकती है, और वो भी काजी देता है, अपनी मर्जी से सजा हम नहीं दे सकते। मगर मौलाना साहब, इस्लाम के नाम पर, गैरत के नाम पर जो कत्ल कर दिए जाते हैं वो कहां तक जायज है? किस तरह का तबलीग की जा रही है? बात यह है कि जो गैरत के नाम पर कत्ल जो है, ये तो हमारे मुआशरे का एक रवाज बन गया है। इस्लाम तो इसको नहीं कहता। अगर किसी लड़की ने सर से दुपट्टा उतारा है, किसी गैर महरम से बात की, तो इस बात पे कत्ल गारत हो जाता है। हत्ता के इस्लाम ने जिना जो है, जिना अगर किसी ने किया है तो शादीशुदा को 100 जो है वो उसको संसार कर दिया जाएगा, और गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारे जाएंगे। माफ करें दोस्तों, यहां पर लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बदकार औरत की तौबा की कहानी। जी ब्रेक के बाद।